Now, the next concept is types of transactions. Next concept is types of transactions. Let's see. Types of transactions. Okay. Basically, there are two types of transactions: cash transactions and credit transactions. They are relevant for us. Cash transactions and credit transaction. Let's see. What do you mean by cash transaction and what do you mean by credit transactions? Cash transactions and credit transactions. Cash and credit. Cash transactions are the transactions, right, where date of transaction and settlement of transaction date of transaction and settlement of transaction are on same day. The transactions where the settlement is on the same day. Transactions where settlement is on the same day. Buyer settles the transaction, means buyer makes the payment on the date of transaction itself. Means you purchase goods today, you paid today. You received services today, you paid for them today only. So settlement is at the same time. When settlement of the transaction is at the same time of the transaction. आप पोस्टपोन नहीं कर रहे हो कि मैं पेमेंट बाद में करूंगा. नो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब ट्रांजैक्शन होगा तुरंत पे होगा. Such transactions like are cash transactions. लिख लेना. That is, settlement is not postponed. Is not postponed. Settlement is not postponed. And credit transactions are the transactions, right, where settlement of the transaction is postponed to future date. Means you purchase goods today, you will pay after 1 week, after 15 days, after 1 month, after 2 months, like that. Try to understand. Are you getting my point? So when you ask for the credit period as a buyer, you ask for the credit period. I will pay you after 1 week, 15 days, 1 month. Give me some time to make the payment. Such transactions are called as credit
ट्रांजैक्शन, उधारी चेक। ठीक है, आपने कहाँ पे देखा होगा, बहुत सारे दुकान में उधारी बंद इसे लिखा होता है, मीन्स दे डू नॉट सेल on credit basis, means if you have to purchase from them you have to pay at the same time, matlab only cash transactions are right accepted. Does cash transaction means only payment is in cash? No, settlement should be on the same date, means you can make the payment, right? There are many ways or modes of making the payment or settlement. Settlement के बहुत सारे options हैं, ठीक है, लिख लेना, right? So there are 2 points. There are 2 points one should always understand for the transactions. There are 2 points. Means what? There are 2 points for the transactions. मतलब एक होता है transaction. You have enter into transaction, and दूसरा होता है settlement of the transaction. We record both. As an accountant, we record the transaction as well as settlement of the transaction. There are basically 2 events. One event, you have entered into transaction, and another event is a settlement of the transaction. Suppose Pragati purchased books, that is goods for them, right? Pragati purchased books from Navneet of rupees 10 lakhs. They have purchased the goods. It is a transaction. They have entered into transaction, and they settles the transaction on the same date. They instantly pay 10 lakhs. They give the check. They issue the check. They issue the check in the name of Navneet. The settlement of the transaction is also on the same date. First event, transaction. Second event, settlement. Both are on the same date. When both are on the same date, we say, right, it is a cash transaction. After cash transaction, Pragati is not required to pay anything. Navneet is not supposed to receive anything. Cash transaction के बाद settlement हो जाती है, and therefore, right, seller is not required to receive anything from the buyer. Buyer is not supposed to pay anything to the seller. Relationship is just buyer and seller. So, ठीक है, आगे लिख लेना. The relation between seller and buyer comes to an end. Right? That is, seller is not supposed to recover anything, not supposed to recover anything, to receive anything, anything from buyer, and right, buyer is not supposed to pay anything, to seller. Now, because आपने settlement कर दी ना. However, in case of credit transaction,
However, in the credit transaction, right, the relation between buyer and seller, the relation between buyer and seller or seller and buyer extends to creditor and debtor. Creditor and debtor. Seller becomes creditor, buyer becomes debtor. ये कब होता है? In case of credit transaction, right? That is, seller is creditor of buyer and buyer is a debtor of seller. जिससे पैसे लेने हैं, किससे लेने होते? बायर से. देखो, अगर आपने उसको 10 लाख के सेल किया एंड उसने तुरंत पेड किया, अब कुछ लेना है क्या उससे? नहीं, कुछ भी रिसीव नहीं करना है. यू सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 10 lakhs, ही पेड यू 10 lakhs. The relation has ended. You are not supposed to recover anything from him. However, suppose you sold goods of rupees 10 lakhs to him and he asks a credit period of 1 month and you grant him the credit period of 1 month, means you have sold him rupees goods of 10 lakhs. After this event, after this transaction, credit transaction, it is your right to receive rupees 10 lakhs from him. It is your right. और कल जिन्होंने लेक्चर आफ्टरनून वाला अटेंड किया होगा, they must have understand assets are the rights. If you are right, it is your asset. So now the seller, you have sold goods of rupees 10 lakhs to your buyer on credit. Now it is your right to receive 10 lakhs from the buyer. Right क्यों आया है? पहले right नहीं था, but जैसे आपने उसको goods sell किए, आपने उसको goods दिए, it established a right for you. It created right for you to receive rupees 10 lakhs. उसने 10 लाख देने के बाद कोई राइट है कि आपको उससे फिर से कुछ लेने का? नहीं. बट अगर उसने 10 लाख नहीं दिया है, now it gives you right to recover, receive rupees 10 lakhs from him. That person is a debtor because it is your asset, because it is a right. And why I say right? Because if he doesn't pay you, you can sue him in the court. You can bring him in the court. आप उस पर केस डाल सकते हो. Obviously, आपने गुड सेल किए हैं, तो it's your right to receive the money, right? So your right is your asset. So debtors are your asset. Debtors are your assets. Debtors one day or someday will get converted into cash and bank balance. When they will pay you, debtors decreases, cash increases. When you sold goods on credit to them, when you sold goods on credit to them, right, your debtors increase, income increases, debtors increases. इनकम हो गई, सेल करने पे बोलते हो जितना सेल उतनी इनकम, बराबर ना? हम बोलते हैं रिलायंस का बहुत बड़ा सेल है, एयरटेल का सेल ज्यादा होता है, जियो का सेल ज्यादा होता है, अमेजोन वाले ज्यादा सेल करते हैं, लाइक दैट. इट इज देयर इनकम. सेल इज इनकम. सो सेल करेंगे तो कैश आएगी या डेटर्स आएंगे. अगर कैश ट्रांजैक्शन से तो आपको कैश मिलेगी, राइट? अगर क्रेडिट सेल तो आपको राइट मिलेगा टू रिसीव द मनी. क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. when you sell goods on cash, you receive the cash or bank balance, right? If you sell goods on credit, you receive the right to recover the money from that person. Both are the asset. Cash is asset, debtors is asset. खाली डिफरेंस क्या है? debtors अभी तक कैश में कन्वर्ट नहीं हुए. when they will pay you, try to understand, right? The debtors will decrease and cash will increase. जब हमने उनको सेल किया, इनकम इंक्रीज, डेटर्स इंक्रीज. मुझे तुमसे पैसे लेने, अब पहले नहीं लेने थे, अब लेने, डेटर्स इंक्रीज हो गए, रिसीवेबल्स इंक्रीज हो गए. एंड जब रिसीवेबल्स आपको पे करेंगे तो रिसीवेबल्स डिक्रीज होंगे और कैश इंक्रीज होगी या बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड.
And if you have purchased goods from someone else, from your seller, when you purchase goods, suppose आपने 5 लाख के गुड्स परचेस किए आपके सेलर से और आपने कैश दे दी, कैश पे, देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू पे यू नाउ, आपने पेड कर चुके हो. He cannot recover from anything from you, and you are not liable to pay anything to him. There is no obligation because आपने पेमेंट कर चुके हो. फिर से कुछ पे करना है क्या? नहीं. हाँ, बाद में परचेस करोगे तो पे करना पड़ेगा, बट अभी फॉर दिस ट्रांजैक्शन में बात कर रहा हूं. नो. And when, right, you purchase on credit, you are liable to pay him the amount in future. आपने उससे 5 लाख के गुड्स लिए एंड आपने बोला कि गिव मी 15 डेज क्रेडिट पीरियड, 15 दिन के भीतर में तुझे पे करता हूं, या 15th डे पे मैं तुझे पे करता हूं. सेलर को बोला, एंड सेलर बोला ठीक है, ही एग्रीड. सो नाउ इट हैज created a liability for you. You are liable, you are obligated to pay rupees 5 lakhs to him after 15 days or on 15 days. So this transaction has created obligation. This transaction had made you liable to settle the transaction. So फर्स्ट ट्रांजैक्शन में हमें पैसे रिकवर करने का राइट मिला था. राइट है, असेट है, इसलिए डेटर्स आर असेट्स. एंड सेकंड ट्रांजैक्शन जो मैं दे रहा हूं कि जिसमें हमें पे करना है, दैट ट्रांजैक्शन हैड मेड यू लायबल, दैट ट्रांजैक्शन हैज मेड यू अकाउंटेबल. इट हैज क्रिएटेड ऑब्लिगेशन कि आपको पे करना है. आप बाद में हाथ ऊपर नहीं कर सकते कि नहीं नहीं मैंने पे करूंगा. यू हैव टू मेक द पेमेंट. समझ में आ रहा है? सो अगर आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर बोलते मैं एक काम करूंगा, तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो यू आर लायबल टू कंप्लीट दैट वर्क. हम बोलते हैं, हम वोट करते हैं एंड जो जिसको चुन के देते हैं, ही इज लायबल टू डू आवर वर्क टू सर्व द सोसाइटी. लायबल मींस यू आर अकाउंटेबल. इट इज राइट, यू हैव टू लाइक डू दैट थिंग. व्हेन यू परचेज द गुड्स ऑन क्रेडिट, यू आर लायबल टू मेक द पेमेंट. लिया है तो चुकाना पड़ेगा. So, creditors, that person to whom I am liable to pay, the person to whom I am liable to pay is my creditor. The person to whom I have right to receive the money is debtor. The person to whom I have right to receive the money is a debtor, and the person to whom I am liable to pay the money is creditor. And ये दोनों क्यों होते हैं? Because of credit transactions. Are you getting my point? And therefore we say creditors are liabilities of the business. Creditors are liabilities of the business. ठीक है? So continue. ठीक है? आगे कंटिन्यू करते हैं. चलो. गुड. लिख लेना मोड्स ऑफ सेटलमेंट. मोड्स ऑफ सेटलमेंट. मोड्स ऑफ सेटलमेंट. फर्स्ट ऑब्वियसली कैश, जो सबसे कॉमन मोड है, राइट? एवरीवन एक्सेप्ट द कैश. सेकंड चेक्स, maximum people accept the checks. Third net banking. Second checks. Third net banking. Then like इसमें आता है IMPS, RTGS,
NEFT, बराबर। देन ये 3 मोड्स होते हैं नेट बैंकिंग में, ट्रांसफर, टू ट्रांसफर द फंड्स और टू रिसीव द फंड्स, राइट। IMPS, it is open on even Sundays. IMPS is open on Sundays. मैंने बोला मैं इस पे एक लेक्चर लेने वाला हूँ अलग से, नॉलेज कैप्सूल बोल के, ठीक है। ये एक्चुअली क्या होता है ये समझने के लिए। देन नेक्स्ट, कैश चेक्स नेट बैंकिंग। देन other payment platforms like Google Pay, Phone Pay, पेमेंट गेटवेज, ठीक है। देन इसमें हमें बैलेंस नहीं रखना होता, ये हमारे बैंक अकाउंट के साथ क्या होते हैं, कनेक्ट होता है। हमें अलग से गूगल पे में बैलेंस नहीं रखना होता या फोन पे में बैलेंस नहीं रखना होता है, जैसे हम पेटीएम में रखते हैं। दे आर वॉलेट्स, पेटीएम इज अ वॉलेट, मतलब उसमें पैसे रखने पड़ते हैं, बराबर ना। ओला मनी इज अ वॉलेट, यू हैव टू कीप द मनी देयर। जैसे आपके वॉलेट में आपको अलग से पैसे रखने पड़ते हैं, राइट। गूगल पे या फोन पे में वैसे नहीं रखना पड़ता, डायरेक्टली आप पेमेंट कर सकते हो। पेटीएम, ओला पे, देयर आर लाइक एयरटेल मनी, जियो मनी, दे आर पेमेंट वॉलेट्स। एयरटेल मनी, जियो मनी, एक्सेट्रा, ठीक है। आगे क्लियर है। सो यू कैन मेक द पेमेंट बाय एनी वन ऑफ द मोड, सेटलमेंट। सो देयर आर टू इवेंट्स, मैंने बोला डेट ऑफ transaction and settlement. If they fall on the same day, at the same time, cash transaction, otherwise they are credit transactions, ठीक है। सिंपल है। एग्जाम्पल, you purchase milk on daily basis but you make the payment at the end of the month. वो बिल देता है आपको and you make the payment at the end of the month. आप ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पे कर रहे हो बट सेटलमेंट एट द एंड ऑफ द मंथ है, तो सेटलमेंट इज पोस्टपोन, इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सेकंड एग्जांपल, राइट, पोस्टपेड कनेक्शंस, राइट। गूगल पे, फोन पे कम्स इन नेट बैंकिंग, नो, मोबाइल बैंकिंग में आते हैं वो अलग, मतलब आपको अलग ऐप चाहिए ना। नेट बैंकिंग मतलब क्या, आपके बैंक का ऐप रहता है उसमें। देखो पेमेंट ऑप्शंस, अगर आप पेमेंट ऑप्शन जाओगे ना, आई कैन, इफ पॉसिबल आई कैन शेयर यू। आप कभी भी पेमेंट गेटवे पे जाओ, पेमेंट गेटवे, जब भी आपको किसी का पेमेंट करना होता है, देयर आर वेरियस ऑप्शंस, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, गूगल पे, फोन पे, ऐसे अलग अलग ऑप्शन होते हैं। दे आर नॉट द सेम। गूगल पे एंड फोन पे इज अ टोटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो मैं आपको समझाऊंगा, एक मैं लेक्चर लेने वाला, उसमें और क्लियर हो जाएगा। हमारे लिए क्या, हमें पेमेंट होने से मतलब है। देखो आप IMPS RTGS करोगे तो यू वोंट गेट सम पॉइंट्स, लाइक गूगल पे, फोन पे क्या करते हैं, इफ यू मेक द पेमेंट थ्रू देयर ऐप तो आपको तो कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स भी देते हैं, आपने देखा होगा कभी, राइट। यू गेट समथिंग लाइक मनी बैक, और आपको कुछ बेनिफिट मिलता है, या तो फूड कूपन्स मिलेंगे, राइट, ऐसे कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। वो फैसिलिटी नेट बैंकिंग में नहीं होती। मैं IMPS के थ्रू पेमेंट करोगे तो नहीं। और दूसरी बात, गूगल पे, फोन पे एक लिमिट है पेमेंट करने की, बियॉन्ड दैट यू कैन नॉट पे ऑन ए गिवन डे। कुछ तो 25,000 30,000 एक लिमिट होती है। आई नीड टू चेक, रेट हर प्लेटफॉर्म का अलग अलग हो सकता है, बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ।
बट आप IMPS, RTGS, NEFT आप लैक्स में भी पेमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. दैट इज नेट बैंकिंग के एडवांटेजेस है. एंड पेटीएम, ओला मनी, एयरटेल मनी, जियो मनी, पहले हमें वहां पे पैसे रखने होते हैं एंड फिर वहां से पेमेंट होता है. मतलब ये वॉलेट जैसे, अगर उसमें है तो ही पेमेंट होगा, अदरवाइज नहीं. एंड एक्चुअली फोन पे एंड गूगल पे हैज बिकम फेमस मोर देन द पेटीएम. इज रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि वो आपको पैसे उसमें डालो और फिर पेमेंट करो, झंझट नहीं है. डायरेक्टली बैंक अकाउंट से पेमेंट होगा डायरेक्टली. पहले तो पेटीएम था, बराबर ना, पहले तो पेटीएम था, तो पेटीएम वाज क्वाइट फेमस. बट जैसे गूगल पे एंड फोन पे आ गया, राइट, पीपल फाइंड इट मोर कन्वीनियंट टू यूज गूगल पे एंड फोन पे बिकॉज वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट के साथ कनेक्टेड है. हाँ, समटाइम्स इट इज रिस्की एज वेल कि डायरेक्टली आपके बैंक के साथ है. लाइक पेटीएम में पहले अगर पेटीएम में पैसे तो ही पेमेंट होगा. सो इट कम्स विद सम, जब अगर कोई एडवांटेजेस रहेंगे तो देयर हैज टू बी डिसएडवांटेजेस. अगर कोई राइट है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रहती है, बराबर ना. सो अगर कोई चीजें अच्छी है तो बुरी चीजें भी रहेंगी, राइट. सो फिलहाल इतना समझ लेना एंड देयर आफ्टर, ठीक है. ये आ गया आपका टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस. नेक्स्ट, मोड्स ऑफ सेटलमेंट. तो मैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन के एग्जांपल दे रहा था. देयर इज अ पोस्टपेड कनेक्शन. पोस्टपेड कनेक्शन में क्या होता है, राइट, यू यूज, सपोज आपके पास पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन है, आप पूरे मंथ कॉलिंग करो, पूरे मंथ नेट यूज करो, एंड मंथ खत्म होने के बाद बिल जनरेट होगा एंड दे विल आस्क यू टू मेक द पेमेंट विद इन लाइक 1 week or 10 days. So you are using the services, you are buying the services throughout the month and you are making the payment afterwards. It is a credit transaction. It is a credit transaction. For you it is a credit purchase, for the company it is credit sale. समझ में आ रहा है. दूसरा, prepaid connection. First you have to recharge your mobile, then only you can call. Once your balance is exhausted, you cannot call. Simple. That transaction is a cash transaction because you are paid at the time of transaction only. जब भी कॉल करोगे आपका बैलेंस कट होगा, कॉल करोगे बैलेंस कट होगा, डेटा यूज करोगे बैलेंस कट होगा. इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन. देन सेकंड, वो डेबिट कार्ड जैसे, प्रीपेड इज लाइक डेबिट कार्ड, राइट. अगर आपके बैंक में पैसे तो ही आप पेमेंट कर सकते हो, जितना बैंक में उतना पेमेंट कर सकते हो. सो जैसे आप क्रेडिट कार्ड यूज, डेबिट कार्ड यूज करोगे, आपके अकाउंट से पैसे माइनस हो जाएंगे, बराबर. अगर आपके अकाउंट में 10,000 है तो आप 10,000 की शॉपिंग कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो बाय यूजिंग डेबिट कार्ड. एंड जो दूसरा है ना, पोस्टपेड, इट इज लाइक ए क्रेडिट कार्ड. पहले पेमेंट करो, बिल बनेगा, एंड बाद देखो हम पेमेंट करते रहेंगे, राइट, हम परचेस करते रहेंगे, कार्ड स्वैप करते रहेंगे, बैंक हमारे लिए पेमेंट करती रहती है, बैंक हमारे लिए पेमेंट करती है सेलर को, एंड एट द एंड ऑफ द मंथ हम बैंक को पे करते हैं. तो हमारे लिए तो क्रेडिट हो गया ना, बिकॉज हमने गुड्स परचेस किए, क्रेडिट कार्ड स्वैप किया. एग्जांपल, मैंने पेट्रोल डाला 1000 का आज, कार्ड क्रेडिट कार्ड स्वैप किया, तो पेट्रोल वाले को तभी पैसे मिलेंगे, पेट्रोल पंप वाले को तभी मिलेगा. कौन पे करे, मैं तो नहीं पे कर रहा हूं, मेरी बैंक मेरे लिए पे कर रही है. He will receive, for him it is a cash transaction, cash sale. ये जो 1000 है मैं बैंक को दूंगा एट द एंड ऑफ द मंथ, एक मंथ के बाद, जब भी उसकी बिलिंग साइकिल कंप्लीट होगी तब. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. मैं ट्रांजैक्शन आज कर रहा हूं लेकिन मैं पेमेंट एक मंथ के बाद कर रहा हूं. इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इसलिए उस कार्ड को क्रेडिट कार्ड बोलते हैं. सामने वाले को, सेलर को पैसे तुरंत मिलते हैं, बट हमें पेमेंट बाद में करना होता है बिकॉज मैं, बायर एंड सेलर के बीच में बैंक है, हम कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं. तो हमारी बैंक हमारे लिए सेलर को पैसा देती है, तो सेलर को तो पैसे मिल गए, बट एक्चुअली हमारे बैंक अकाउंट से बैंक को पैसे नहीं गए, बैंक ने हमारे अकाउंट से डिडक्ट नहीं किए. वो कब कब डिडक्ट होंगे या कब हम पे करेंगे, आफ्टर द एंड ऑफ द बिलिंग साइकिल. डेबिट कार्ड में क्या होता है, डेबिट कार्ड में क्या होता है, हमें सेलर है, बायर सेलर एंड बीच में बैंक है, हम कार्ड स्वैप करते हैं, तो बैंक सेलर को पेमेंट करती है एंड हमारे अकाउंट से तुरंत रिकवर करती है. दे डोंट वेट फॉर द एंड ऑफ द पीरियड.
जैसे हमारे अकाउंट से निकाल के सेलर के अकाउंट में डिपॉजिट कर देगी, दैट इज अ डेबिट कार्ड कंसेप्ट. सो डेबिट कार्ड इज अ कैश ट्रांजैक्शन फॉर बायर एज वेल एज सेलर. डेबिट कार्ड इज अ कैश ट्रांजैक्शन. लिख लेना, डेबिट कार्ड्स आर कैश ट्रांजैक्शंस. इफ यू यूज डेबिट कार्ड, राइट, डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस आर एटीएम. एटीएम कार्ड बोलते हो ना आप उसको, डेबिट कार्ड. डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस आर, लिख लेना, डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस आर कैश ट्रांजैक्शन फॉर बायर एज वेल एज सेलर. दोनों के लिए कैश ट्रांजैक्शन है, क्योंकि बायर के अकाउंट से तुरंत डिडक्ट होता है एंड सेलर के अकाउंट में तुरंत वो डिपॉजिट हो जाता है. बायर के अकाउंट से विड्रॉ होगा, सेलर के अकाउंट में डिपॉजिट होगा. एंड ये कौन करेगी? हमारी बैंक करेगी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सेकंड, हाँ, इसके लिए सेलर को चार्जेस लगते हैं. सेलर को कोई नॉमिनल चार्जेस लगते हैं, 0.75% वगैरह, 0.75% ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू. जैसे उसकी एक लिमिट होती है, यू हैव टू गो एंड चेक द लिमिट. ठीक है, हमें नहीं लगते, बायर को नहीं लगते हैं, सेलर को लगते हैं. और कोई कोई सेलर वो रिकवर भी करता है, आपने सुना होगा, वो बोलते हैं इतने चार्जेस दे दो हमें. एक्चुअली दैट इज इलीगल, बट कोई लोग करते हैं. ठीक है, आगे. मगर उनको पूरा पैसा नहीं मिलता. एग्जांपल, मैंने 10,000 के लिए कार्ड स्वैप किया. कितने के लिए कार्ड स्वैप किया? 10,000. तो मेरे अकाउंट से 10,000 माइनस होगा, बायर के अकाउंट से 10,000 माइनस होगा. सेलर को कितना मिलेगा? 10,000. एंड सपोज 0.75% चार्जेस है, परसेंट. सो दैट विल बी, इफ यू फाइंड आउट 10,000 का 0.75%, 75 रुपीज चार्जेस लगेंगे. सो सेलर के अकाउंट में 10,000 minus 75, he will receive 9,925 only. मेरे अकाउंट से कितना पेमेंट हो गया? दिस इज बायर. ये डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड दोनों के केस में चार्जेस रहते हैं. चार्जेस चेंजेस फ्रॉम बैंक टू बैंक, इवन फ्रॉम कस्टमर टू कस्टमर. अगर आप बहुत प्रिविलेज कस्टमर हो तो मे बी आपके लिए चार्जेस कम हो सकते हैं. प्रिविलेज मतलब आप बहुत बड़े कस्टमर हो उनके. ठीक है, सो यू कैन ऑलवेज नेगोशिएट दिस चार्जेस. ठीक है, बायर एंड सेलर. बायर मेक्स द पेमेंट ऑफ 10,000. बीच में बैंक है. बैंक विल रिकवर 10,000 फ्रॉम बायर and bank will pay just 9,925 to seller. सेलर के अकाउंट में 9,925. आप बोलोगे सर 75, ये जो सर्विस दी है बैंक ने, उस सर्विस के लिए बैंक डिडक्ट 75 रुपीज, वो ट्रांजैक्शन चार्जेस बोलते हैं. तो इसमें बायर के लिए पेमेंट हुआ कितने का? 10,000. सेलर को कितना मिला? 9,925. इसमें बैंक का फायदा कितना हुआ? बैंक की इनकम कितनी हो गई, या बैंक को कमीशन कितनी मिली? ₹75. अब बोलोगे सर सेलर को तो कम पैसा मिल रहा है. यस, सेलर को कम पैसा मिलता है, बिकॉज चार्जेस बैंक जो पे करता है उसके अकाउंट से नहीं डिडक्ट करता, जो पैसे रिसीव करता है उसके अकाउंट से, राइट, बैंक चार्जेस लगाती है. क्यों? उसका रीजन समझ लेना. जो आप एटीएम ये करते हो, स्वैप करते हो, मतलब सपोज आप ऐसे का डेबिट कार्ड यूज कर रहे हो, तो आपका अकाउंट ऐसे में, और जो सेलर का अकाउंट में भी आईडीबीआई में हो सकता है, एक्सिस बैंक में हो सकता है, किसी दूसरे बैंक में हो सकता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. बायर जो उसका कार्ड स्वैप कर रहा है वो आईसीआईसीआई बैंक का बायर कस्टमर है, उसके पास आईसीआईसीआई बैंक का डेबिट कार्ड है, एंड आईसीआईसीआई बैंक को पैसे ट्रांसफर करने आईडीबीआई बैंक में, क्योंकि सेलर का अकाउंट आईडीबीआई में, एक्सिस बैंक में, कोई दूसरे बैंक में.
तो इट रिक्वायर्स सम कॉस्ट, इसलिए वो उसको चार्जेस लगाते हैं। सेलर से चार्जेस सीकर होते, इतना भी समझे। सो आप बोलोगे भाई सेलर क्यों कार्ड एक्सेप्ट करेगा? बिकॉज उसको 10,000 जो मिलना चाहिए 75 कम मिल रहा है। देखो दोनों तरीके से सोचो, कोई सेलर्स बोलेंगे नहीं हम कैश में ही लेंगे, या तो हमें चेक दे दो, हम कार्ड नहीं लेंगे बिकॉज हमें 75 रुपीज कम मिलेगा। दैट कैन बी वन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेलर्स। सम सेलर्स विल से कि nowadays every buyer uses card, every buyer, no one carries cash actually. So if you don't provide this facility, the buyers will say यार ये कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते, यहाँ पे नहीं दूसरी जगह पे जाते हैं, you may lose the customer। 75 के चक्कर में you will lose that 9925, 9,925। Are you getting my point? So it's decision of the seller. I can give some example like सुजाता मस्तानी, पता है ना आपको सुजाता मस्तानी? Like they are very big player। आपने उनसे नहीं लिया तो उनको फर्क नहीं पड़ता। आप वहां पे जाते हो, बोलते हो मुझे मस्तानी चाहिए 75 रुपीज, 150 रुपीज, और आप बोलते हो कार्ड है क्या? वो बोलता है नहीं, देना है तो कैश दे दो, अदरवाइज नहीं। अगर आपके पास कैश नहीं है तो यू विल वॉक अवे, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। क्यों? आप 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 होने से नहीं होने से उनको कुछ नहीं, बिकॉज दे आर सेलिंग टू ऑलमोस्ट राइट 1000 to 1000 कस्टमर्स ऑन डेली बेसिस। बट एक सिंपल छोटा सेलर है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसके लिए एवरी कस्टमर मैटर्स। तो वो सोचेगा ना 10 बार यार मेरा एक भी कस्टमर नहीं जाना चाहिए। सुजाता मस्तानी विल आल्सो थिंक, बट दे डोंट बॉदर बेसिकली। I don't know now today they accept or they don't accept cards, but मैं आपके 1-2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, because I started using Google Pay, Phone Pay very early. I never carry basically cash. वो nominal cash अगर इमरजेंसी में लगती है तो, अदरवाइज आई डोंट कैरी कैश, बंद कर दिया मैंने कब का। बिकॉज जहाँ पे भी जनरली जाओ, कहाँ पे ना, हर जगह पे गूगल पे, फोन पे, कार्ड्स तो एक्सेप्ट होते हैं, राइट ना? सो आई बेसिकली आस्क, वहां पे लिखा भी होता है सेलर के काउंटर पे, गूगल पे वगैरह, उसका कार्ड स्टिकर वगैरह रहेगा। देखा होगा आपने बहुत बार, होटल्स में एक्सेप्ट होता है वगैरह, आजकल छोटे चाय वाले भी रखते हैं। सो इट हैज बिकम वेरी कॉमन। यस, चार्जेस लगते हैं, सेलर को चार्जेस लगते हैं, सेलर को चार्जेस लगते हैं, बायर को नहीं। तो अब इतने बड़े प्लेयर को क्या फर्क पड़ता है 1-2 कस्टमर नहीं आए तो? और कस्टमर को उधर गए मतलब वो उनके नाम की वजह से गए, कस्टमर सामने एटीएम रहेगा, वहां से विड्रॉ करके कैश देगा। सो कोई लोग कैश में बिजनेस करते हैं, कोई लोग राइट बैंकिंग के थ्रू बिजनेस करते हैं। लाइक आप एयरटेल वगैरह उनको देखो, आप घर बैठ के भी पेमेंट कर सकते हो, उनके आउटलेट्स होते हैं, आउटलेट में जाके भी आप पेमेंट कर सकते हो। यू ऑल द ऑप्शंस, यू ऑल द ऑप्शंस ना। सो यही मैं बोल रहा हूं कि डेबिट का ट्रांजैक्शंस आर कैश ट्रांजैक्शन, बिकॉज आपके अकाउंट से 10,000 माइनस हो गया एंड सेलर गेट्स मनी लाइक तुरंत, उसको तो तुरंत मिलता है, उसमें कोई डाउट ही नहीं। वही क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस लिख लेना, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस आर कैश ट्रांजैक्शंस फॉर सेलर and credit transactions for the buyer, or cash transactions for seller and credit transactions for the buyer. ठीक है? क्या लिखा हमने? क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस आर राइट, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस आर कैश ट्रांजैक्शंस फॉर सेलर एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस फॉर द बायर। सो ये जो डेबिट का क्रेडिट कार्ड है ना, वो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कार्ड यूज करता है वो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देन दूसरा मैंने पोस्टपेड का एग्जांपल दिया, इट इज क्रेडिट transaction for Airtel as well as subscriber. वही prepaid is a right cash transaction for both, right? Airtel as well as subscriber. Next, मैंने दूध वाले का एग्जांपल दिया, आपके न्यूज़पेपर वाले का। आप रास्ते से जा रहे हो, आपको न्यूज़पेपर चाहिए, यू परचेस न्यूज़पेपर एंड यू गिव 2, 3, 5 रुपीज एज द केस में बी,
आप तुरंत पेमेंट करते हो। एंड अनदर ऑप्शन है कि आपके घर में डेली न्यूज़पेपर वाला आता है, वो पेपर डालता है एंड उस मंथ के एंड में वो आपको बिल देता है एंड यू मेक द पेमेंट। थ्रू आउट द मंथ यू आर परचेसिंग द न्यूज़पेपर्स बट द पेमेंट इज एट द एंड ऑफ द मंथ। इट दे आर द क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। नेचर, ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पे हो रहा है, सेटलमेंट मंथ के एंड में हो रहा है, पोस्टपोन हो रहा है। आपका घर के बाजू में एक दुकान रहता है, वहां पे आपका अकाउंट होता है, आप पूरे मंथ वहां से परचेस करते हो, मंथ के एंड में वो आपको बिल देता है एंड आप उसको पेमेंट करते हो। आपने अब्दुल, मैं वो चीज एग्जांपल दूंगा जो आपने कभी देखा होगा लाइफ में, तारक मेहता जनरली एवरीवन वॉच, राइट? उसमें वो अब्दुल की शॉप रहती है देखो, और मंथ के एंड में या मंथ के नेक्स्ट मंथ के बिगिनिंग में वो सबके घर में जाके बिल देता है। सो इसका मतलब क्या, द वो जो भी फैमिलीज है गोकुल धाम वाले, दे आर परचेसिंग, राइट, द मटेरियल फ्रॉम द अब्दुल शॉप on credit. He is selling on credit, they are purchasing on credit. At the end of the month he prepares their bill and he gives them and he receives the money. Are you getting my point or no? So ये होता है, राइट, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि यू आर नॉट सपोज टू मेक द पेमेंट राइट नाउ, बट क्रेडिट ट्रांजैक्शन में एक टेंशन भी रहता है कि इफ बायर डज नॉट पे इन द फ्यूचर। होता है ना, कितने बार होता है? यस, होता है। नॉट एवरी बायर इज गुड, ह्यूमन नेचर है, सम विल नॉट पे, राइट? यू कैन ब्रिंग देम इनटू कोर्ट वगैरह, वो सब कर सकते हो, लीगल फॉर्मेलिटीज में मुझे जाना नहीं है। बट इफ बायर डज नॉट पे यू मनी, डेटर डज नॉट पे यू द मनी, दैट बिकम्स योर लॉस। वो आपका लॉस होता है। एग्जाम्पल, आपने किसी को पैसे दिए, आपने आपके पापा से लेके आपको फ्रेंड को पैसे दिए 10,000, आपने पापा को बोला नहीं, आपको टेंशन है वो 10,000 दे कब देगा, आप उसको हमेशा फॉलो अप करते हो कि मुझे 10,000 दे, वो पे ही नहीं कर रहा है, पे ही नहीं कर रहा, वो पे ही नहीं करता, इट बिकम योर लॉस। ये आपका लॉस हो गया ना, राइट? जो 10,000 यू कुड हैव यूज्ड फॉर सम अदर पर्पस, राइट, वो आपको पैसे ही नहीं रिटर्न कर रहे हैं। ऐसे होता है बहुत बार। रीजन कैन बी एनीथिंग, उसका जो रीजन है आई डोंट नो, बट अपना तो लॉस है ना। सो सच लॉस इज कॉल्ड एज बैड डेट्स। लिख लेना, बैड डेट्स। व्हेन बैड डेट्स, when debtors become irrecoverable, it is a loss। ये हमारा लॉस होता है। बैड डेट्स, creditor cannot recover money from their debtors, creditor cannot recover money from the debtors, it is called as bad debts। ऐसे आपने फ्रेंड भी देखे होंगे जिन्होंने पोस्टपेड कनेक्शन लिया है बट वो पे ही नहीं करते बिल, बोलते जाने दो, नंबर बंद हो जाएगा, होने दो, दे डोंट पे। सो इट इज द बैड डेट्स ऑफ दैट मोबाइल कंपनी। होता है बहुत बार, ठीक है? देन, ठीक है, आगे। हम्म सो हमने टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन देखे, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है? ओके, ओके, लेट मी चेक, ठीक है? ओके, देन कम्स डेटर्स। अभी हमने यहाँ पे थोड़ा डिस्कस किया डेटर्स का, लिख लेना। डेटर्स आर buyers to buyers from whom
या ऐसे लिखो, अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम बायर्स on account of credit sale. To them. When we sell goods on credit to our buyers, we have to recover money. It's our right. Right. It is right of seller. That is creditor. Seller को क्या बोला जाएगा? Creditor. ऐसे cases में seller becomes creditor. Right. It is a right of a seller and therefore asset of seller. It is asset for seller. Creditor की वो asset होगी. That right, money receivable. Debtors does not mean person. Debtors means amount. ठीक है. सो आप बंदे भी बोल सकते हो, बायर्स, बट डेटर्स हम अकाउंट्स में बंदों का नाम नहीं लिखेंगे, रुपीज लिखेंगे. ठीक है, इससे इतना रुपीज रिसीवेबल, इससे इतना रुपीज रिसीवेबल, इतना इससे रुपीज रिसीवेबल है. सो मेरा टोटल रिसीवेबल कितना है. नेक्स्ट, क्रेडिटर्स. अमाउंट पेएबल्स टू सेलर्स और सप्लायर्स on account of credit purchases. Credit purchases from them. Right. लिख लेना, it is obligation of buyer, that is debtor. It is obligation मतलब वो liability. Obligations को liability मतलब अगर आपको पे करना है तो वो आपकी liability होती है. लोन लिया है, पे करना पड़ेगा. लोन लिया तो रिटर्न करना पड़ेगा ना. That is obligation. Loan is a liability. समझ में आ रहा है. गुड्स क्रेडिट पे परचेस किए तो पे तो करना पड़ेगा, उसके लिए पे करना पड़ेगा, मतलब वो आपकी लाइबिलिटी है. लाइबिलिटी फॉर डेटर या बायर. कैश ट्रांजैक्शन में झंझट नहीं रहती. कैश में किस्सा खत्म. ठीक है, आगे. सो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स हुए. ठीक है. सो when I say debtors and creditors, try to understand. Actually, we are referring debtors means buyers and creditors means sellers. ठीक है. So yes. Then suppose ऐसे भी मिक्स ट्रांजैक्शन हो सकते हैं. कौन से? राइट. ये डायग्राम निकालना. देयर इज अ सेलर, there is a seller, there is a buyer, ठीक है. सेलर सोल्ड गुड्स, राइट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट. ऑन क्रेडिट.
Seller sold goods on credit. So seller becomes creditor, buyer becomes debtor. So debtors are all those buyers. Debtors are all those buyers to whom we have sold goods on credit and they have not yet paid. They have not yet paid. अभी तक पेड नहीं किया. जिन्होंने पेड किया वो डेटर नहीं. देखो मैंने आपको सेल किया था क्रेडिट पे और आपने मुझे पेड किया. जिस दिन आप पेड करोगे आप मेरे डेटर नहीं रहोगे. जिस दिन पेमेंट होगा उस दिन आप डेटर नहीं रहोगे. फिर उस दिन के एंड में आप डेटर नहीं. जब तक आप पे नहीं करोगे तब तक डेटर एंड उस दिन तक मैं आपका क्रेडिटर. जिस दिन आप मुझे पे करोगे आई विल बी नो लॉन्गर योर क्रेडिटर. मतलब डेटर्स मतलब रिसीवेबल. डेटर्स मींस अमाउंट रिसीवेबल. कितनी रिसीवेबल है जो रिसीव्ड हो चुकी है वो कहां से डेटर. सपोज मैंने ए एंड बी को सेल किया, दोनों को क्रेडिट पे सेल किया 10,000 मैं बोलूंगा 20,000 मेरे डेटर्स है. ए ने बाद में आके मुझे पेड कर दिया 10,000. तो ए इज नो लॉन्गर डेटर. माय डेटर इज ओनली बी. मैं बोलूंगा 10,000 के डेटर्स है. जिस दिन बी मुझे पे करेगा तो मेरे डेटर्स विल बिकम जीरो. मुझे कुछ किसी से रिसीव नहीं करना है, मुझे मिल गया पैसे. वैसे मैंने ए बी सी से परचेस किए गुड्स 10 30,000 क्रेडिटर्स है मेरे. मैंने ए को जाके पेड किया. ए मेरा क्रेडिटर नहीं रहेगा. अब बी एंड सी आर माय क्रेडिटर्स 20,000. मैंने बी को पेड कर दिया 10,000. बी अब क्रेडिटर नहीं रहेगा. अब खाली सी मेरा क्रेडिटर है 10,000. एंड जिस दिन मैं सी को पे कर दूंगा सी विल आल्सो बी like no longer my creditor. My creditors will become zero. So debtors increases because of credit sale. अब जितना क्रेडिट सेल करोगे उतने डेटर्स इंक्रीज होंगे. क्रेडिट ट्रांजैक्शन आर रिस्की. रिकवरी का प्रॉब्लम हो सकता है. बट इफ यू आर टू एक्सपांड द बिजनेस you have to take the risk. Business is a risk. जितने रिस्क लोगे उतने रिवॉर्ड्स होते हैं. रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर डायरेक्टली रिलेटेड, प्रोपोर्शनल है. हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड, लेस द रिस्क लेस द रिवॉर्ड्स. धोनी यूज्ड टू टेक द रिस्क एंड इट यूज्ड टू पे ऑफ. सो जितनी रिस्क लोगे उतने रिवॉर्ड्स भी होते हैं. फेल्योर के चांसेस रहेंगे बट अगर सक्सेस मिलेगा तो दैट विल बी वेरी, उसका क्वांटम बहुत ज्यादा होगा, मल्टीपल्स में रहेगा. ठीक है. सो debtors increases because of credit sale and debtors decreases when on recovery, on receipt of money. Creditors increases because of credit purchases and creditors decreases because when you make the payment on payment of money. Payment of money. Very simple. आगे ठीक है. Then another concept is accounting year. Right. अकाउंटिंग ईयर जैसे आपका एकेडमिक ईयर होता है वैसे हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है. वी प्रिपेयर अकाउंट्स ऑन ईयरली बेसिस. We close the account at the end of the year and we again open accounts at the beginning of the next year. Right. आपने देखा होगा कि दिवाली के टाइम वगैरह, लक्ष्मी पूजन के टाइम, your father prepares a new notebook. Every Lakshmi Pujan, he will prepare a new notebook.
तो ही इज फॉलोइंग लक्ष्मी पूजन टू लक्ष्मी पूजन एज ए ईयर। तो उस साल में जो भी उनके ट्रांजैक्शंस रहेंगे वो लिख के रखते हैं उस नोटबुक में। नेक्स्ट ईयर फिर एक नई नोटबुक करेंगे, वो उसको भी पूछते, देखा होगा आपने, राइट। सो जैसे आपका एकेडमिक ईयर जनरली अप्रैल से मार्च होता है, वैसे हमारा इंडिया में अकाउंटिंग ईयर भी अप्रैल से मार्च है। सो अकाउंटिंग ईयर मींस, क्यों ये अकाउंटिंग ईयर है? इट इज अ पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। दिस इज पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, ठीक है। दिस इज अ पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। लेट मी चेक। ओके, दिस इज अ पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दैट, राइट, जो बिजनेस की लाइफ होगी, लाइक एग्जांपल रिलायंस कितने सालों से चल रहा है, काका हलवाई कितने सालों से चल रहा है, राइट। कोई भी दूसरा एक आधा ये ले लो बिजनेस, it is running for several years, but that life of the business should be divided into equal intervals। क्यों? लाइक आपने अभी तक 10th पास किया, 11th में आ गए, तो 10 साल का आपका एजुकेशन हो गया, तो आपका रिजल्ट 10 साल के बाद लगाना चाहिए। एवरी ईयर रिजल्ट लगाते एट द एंड ऑफ ईच ईयर। व्हाई? बिकॉज यू मस्ट नो, राइट, योर पोजीशन आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। 10 साल के बाद आपको पता चला यार आपको कुछ नहीं आता, वही अगर आपको फर्स्ट ईयर के एंड में पता चलता है आपको ये चीजें नहीं आती, ये चीजें आती है, ये नहीं आती है, तो यू कैन इंप्रूव, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड देयरफॉर फॉर असेसिंग द बिजनेस कि क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है, 10 साल के बाद पता चला लॉस है, यू आर वेस्टिंग द टाइम एंड एज वेल एज रिसोर्सेज। वही आपको फर्स्ट ईयर के एंड में पता चला कि आप लॉसेस में हो, यू विल टेक करेक्टिव एक्शंस। सो जैसे हम हमारा एकेडमिक ईयर, राइट, हमारे 12 मंथ्स का होता था, एंड एट द एंड ऑफ ईच ईयर वी यूज्ड टू असेस आवरसेल्फ। हम एग्जाम देते थे, हमें रिजल्ट्स आते थे, राइट, हमें पता चलता था विच आर स्ट्रॉन्ग एरियाज, विच आर वीक एरियाज, एंड अकॉर्डिंगली वी यूज्ड टू टेक द स्टेप्स टू रेक्टिफाई और करेक्ट देम। Similarly, business should also assess itself at the end of each year। एवरी ईयर के एंड में आपने देखना चाहिए कि आप कहाँ पे खड़े हो, बिजनेस एज सच कहाँ पे है, इज इट इनटू प्रॉफिट और इज इट इनटू लॉसेस, व्हाट आर इट्स एसेट्स एंड व्हाट आर इट्स लायबिलिटीज। सो हमने जो पूरी लाइफ है बिजनेस की उसको इक्वल इंटरवल में डिवाइड किया है। जैसे आपके 10 इयर्स एजुकेशन को 12 मंथ्स में डिवाइड किया था, वैसे जो हमारी बिजनेस की लाइफ रहेगी उसको हम 12 मंथ्स के इसमें डिवाइड करेंगे। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट है वो। एंड दैट 12 मंथ्स पीरियड विल बी कॉल्ड एज अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। सो अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर, right? Some countries follow calendar year as accounting year, and some countries follow financial year as a accounting year। Financial year means as per income tax act, every country has its own income tax act। like calendar year मतलब 1st January से 31st December will be treated as your accounting year। like countries like USA, UK, they follow January से December as a accounting year। India follows as per income tax act, which is 1st April to 31st of March। इंडिया में क्या है अकाउंटिंग ईयर? 1st April से 31st March तक। So we prepare accounts on yearly basis। Year starts on 1st April, on which date we will open the accounts, new accounts,
At the end of the year, April, May, June, July, August, September, October, November, December, January, February, March, 12 months के बाद we will close the accounts of that year and we will again open the account on the next day, 1st April of the next financial year. So India में your accounting year is 1st April to 31st of March. So every 31st of March, we will find out, are we earning profit or loss? What are my assets and what are my liabilities are? Try to understand. So 31st March जैसे result date होती है आपकी, exam date, वैसे ठीक है, वो बिजनेस की रहेगी. सो ये इंडिया में ये फॉलो होता है, लिख लेना. दिस इज एप्लीकेबल फॉर अस. लाइक आई कैन शो यू सम एग्जांपल्स. लेट मी चेक. डाउनलोड करने के लिए इनकी रिपोर्ट्स होनी चाहिए. देखो, लेटेस्ट एनुअल इंफॉर्मेशन, एनुअल रिपोर्ट 1920. So year started on 1st April 19 and year ended on 31st March 20. So 31st March 20, अभी हम 2021 अकाउंटिंग ईयर में, 2021 अकाउंटिंग ईयर में है. कौन सा ईयर कंप्लीट हो चुका है अभी रिसेंटली? 1920. मैंने क्लिक किया. सो JSW Steel Limited एनुअल रिपोर्ट्स 1920. सो ये कौन से पीरियड के लिए है, कौन से अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर के लिए? हमारे लिए 1st April 2019 टू 31st March 2020, जो ईयर कंप्लीट हुआ है. बराबर. आगे यस. देखो, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. बाकी भी बहुत सारी चीजें रहती है, कंटेंट्स में आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी. फाइनेंशियल ईयर 1920 इन नटशेल वगैरह, ठीक है. हमें चाहिए स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये समझेगा नहीं आपको, राइट, एक्चुअली, बट मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को. ट्राई टू अंडरस्टैंड. दिस इज रियल, ये एक्चुअल लाइफ है, ठीक है. सो देखो यहाँ पे क्या लिखा है उन्होंने, फाइनेंशियल ईयर 1920 इन नटशेल, ठीक है. 16.06 million ton crude steel produced during that 12 months. 48% contribution of the value added and special products. 89% capacity utilization. उनकी जो भी capacity है, 89% they have utilized in that year. Then you can see total revenue from operations. Sale कितना हुआ पूरे साल में? 1st April 19 to 31st March 20, 73,326 crores. Operating EBIT, earnings before interest, right, tax and depreciation. ठीक है, ठीक है. वो उतना अभी नहीं समझेगा. अर्निंग्स मतलब प्रॉफिट. प्रॉफिट कितने उनके? नीचे देखो, नेट प्रॉफिट 3,919 प्रॉफिट, क्रोस प्रॉफिट 3,900 मतलब 4,000 क्रोस प्रॉफिट है उनका. प्रॉफिट परचेस सेल करने के बाद, ठीक है. देन इन्वेस्टिंग देखो, कैपेक्स स्पेंड ड्यूरिंग द ईयर. कैपेक्स मतलब दे परचेस फिक्स्ड एसेट्स 10,200. उसमें क्या आ जाएगा? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरीज, एग्जाम्पल, ठीक है. दे परचेस्ड उस 12 मंथ्स में 10,200 crores के, राइट. CSR, corporate social responsibility, spent during the year. There are many companies who spend money for the welfare of the society.
willingly. It's a requirement of the Companies Act as well. Like scholarships देंगे, राइट? जिस एरिया में वो काम करे वहां पे रोड कंस्ट्रक्ट करेंगे, उन लोगों को फर्टिलाइजर्स देंगे, समझ में आ रहा है? या ऑर्फनेज चलाएंगे, समझ में आ रहा है? डैम मेंटेन करेंगे, सोसाइटी के लिए खर्चे कर रहे, होता है ना? लाइक इन अपने क्लास के बाजू में साधु वासवानी मिशन है, राइट? सो जो पूरा एरिया है दैट इज मेंटेन बाय द साधु वासवानी चौक, वो एरिया बहुत अच्छा है क्योंकि इट इज मेंटेन बाय दैट मिशन. दे आर डूइंग लाइक काइंड ऑफ ए चैरिटी. देयर आर मेनी पार्क्स इन पुणे व्हिच आर मैनेज्ड बाय कंपनीज, लाइक कमला नेहरू पार्क बोल के, कमला नेहरू पार्क बीएमसीसी के बाजू में, दैट इज मैनेज्ड बाय कल्याणी ग्रुप. फोर्थ मार्शल ब्रिज सुना होगा आपने, चिंचवड जाते टाइम लगता है, पुणे से पिंपरी चिंचवड ऑन ओल्ड राइट मुंबई पुणे हाईवे, दैट इज मैनेज्ड एंड राइट मेंटेन्ड बाय द फोर्थ मार्शल कंपनी. Are you getting my point or no? So many times companies come forward and they create social welfare. फ्री में तो नहीं होता है social welfare, you have to spend money. तो 152 crores they have spent on that. Corporate social responsibility. Companies have social responsibilities as well. समझ में आ रहा है? Like example मुंबई इंडियंस पता होगा, Mumbai Indians team right sponsors education of many students. ये आपको पता है, ये और वो मैच देखने भी आते हैं, ये तो पता होगा. So Mumbai Indians is doing CSR activity, corporate social responsibility activity. They are spending money on right for the students education. Right underprivileged जो student है, poor orphans वगैरह, उनका education पूरा Mumbai Indians की टीम देखती है. टीम मतलब the like that entity. तो वो CSR एक्टिविटी आ गया. Like JSW Steel has spent 152 crores on that. R&D spend, research and development, right? During that year is 56 crores. ठीक है? Now I can show you. So at the end of the year, April से March, they evaluated themselves, they analyzed themselves. Let me show you. पेज नंबर था वो, प्रॉफिट कितने में आपको दिखा भी सकता हूँ, एक सेकंड. 147. You won't understand all these things today, but ये जो मैं जो आपके साथ शेयर करता हूँ, ये this is lifelong. No one will teach you. ऐसे तो कोई डेफिनेटली नहीं सिखाएगा. आई एम टेकिंग द रिस्क. जो चीजें आपको पता नहीं वो भी समझाने का ट्राई कर रहा हूँ. देखो, ठीक है, क्या लिखा है पढ़ो. As at 31st March 20, rupees are in crores. Rupees are in crores. As at 31st March 20, as at 31st March 19. So your year ended on 31st March 20. Your assets were right. आप देख सकते हो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, राइट, राइट्स टू यूज, इंटेंजिबल एसेट. अभी ये आपको इतना पता नहीं है उसमें से, आप देख सकते हो, लेकिन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वो तो समझता है. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट उतना नाम तो समझ में आया होगा. इतने क्रोर्स के उनके पास, 46,000 क्रोर्स के. कैश एंड बैंक देखो, ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स. कितने के ट्रेड रिसीवेबल्स है? 3,166 crores के ट्रेड रिसीवेबल्स है. मींस ऑन 31st March 2020 JSW was supposed to recover from their customers rupees 3,166 crores. इतने के उन्होंने क्रेडिट पे सेल किया है, तो उतने पैसे आएंगे, उन आ जाएंगे 31st March 20 के बाद आ जाएंगे. नहीं आते तो बैड डेट्स हो जाएगा, लॉस हो जाएगा. कोई पे नहीं करता है. तो कैश बैलेंस कितना है उनके पास?
राइट 31 मार्च 20 को उनके पास कितना कैश बैलेंस है 3,438 करोड़ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, बैंक बैलेंस देखो, बैंक बैलेंस कितना है 7,963 crores. This is asset, cash is asset, bank balance is asset, debtors is asset, right? They have given loans. Maybe employees वगैरह उनको loans देते हैं ना, बहुत सारी कंपनी से employees लोन लेते हैं, right? So they have given loans. So loans given कभी ना कभी रिकवर करने पड़ेंगे ना, उसमें इंटरेस्ट भी मिलेगा। लोन्स गिवन इज एन असेट, लोन्स टेकन इज अ लाइबिलिटी। सो देखो कितने के लोन्स गिवन है 321 करोड़ के लोन्स दिए जेएसडब्ल्यू ने लोगों को। अब किसको दिए होंगे आपको डिटेल में देखना पड़ेगा। देन देखो आप, ठीक है, ट्रेड पेएबल्स, देखो ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड पेएबल्स मतलब क्रेडिटर्स, ये वाले उन्होंने दो कैट, वो प्रेजेंटेशन है वो जाने दो। सो यू कैन सी 56 करोड़ एंड 13,298 करोड़ के क्रेडिटर्स है उनके, मींस दे हैड परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट एंड उसमें से इतना पे करना बाकी है 13,000 ऑलमोस्ट 300 करोड़ के क्रेडिटर्स है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इनकम देखो उनकी, इनकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल करने के बाद, ठीक है, यू कैन सी देयर टोटल रेवेन्यू इज दिस, सॉरी 64,000, ये दिख रहा है 64,262 करोड़ का रेवेन्यू हुआ उनका, उनके टोटल एक्सपेंसेस हुए यहाँ पे देखेगा ये वाला 59,000, 36 पॉइंट है ना, नोट नंबर 36 दिख रहा है उसके नीचे देखो 64,000 के ऑलमोस्ट क्रोस में सब वैल्यूज है, सेल हुआ 59,000 का टोटल एक्सपेंस हुआ, सब टैक्स वगैरह माइनस होने के बाद आपके पास बाकी है 5,291 करोड़। ये चीजें होती है। लेट मी अगेन शो यू समथिंग। ठीक है, सो ये सब चीज है। ठीक है, आगे सो ईयर कौन सा था उनका 1920। आगे यहां तक क्लियर है? सो यू शुड अंडरस्टैंड इन इंडिया वी प्रिपेयर फाइनेंशियल ईयर्स, वी फॉलो अप्रैल टू मार्च एज ए फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, ओके यहाँ पे देखो मारुति सुजुकी, जस्ट सेकंड वो हो जाएगा डाउनलोड। और एक चीज अगेन इंपॉर्टेंट चीज कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इवन इंडिया इज गोना कन्वर्ट देयर अकाउंटिंग ईयर फ्रॉम अप्रैल टू मार्च टू 1 जनवरी टू 31 डिसम्बर। दिस इज प्रपोज्ड, ये हो जाएगा मे बी बाय द टाइम यू विल बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट और यू विल बी प्रोफेशनल इन योर लाइफ, राइट? बाय दैट टाइम इंडिया में 1 जनवरी से 31 डिसम्बर अकाउंटिंग ईयर हो जाएगा। जैसे जो मेजर डेवलप कंट्रीज है जो फॉलो करते हैं ना, वही हमारे इधर भी हो जाएगा। ठीक है,
ये क्यों होने वाला है, उसके पीछे लॉजिक ये है कि एग्जाम्पल कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, एग्जाम्पल इन्फोसिस, वो इंडिया में जो अकाउंट्स बना रहे हैं वो अप्रैल से मार्च कर रहे हैं। इन्फोसिस ऑल्सो इन यूएसए, वो वहां पे जो उनकी ब्रांच है या जो सब्सिडरी है, जो कुछ भी है, राइट, उधर भी उनके नाम पे कंपनी रजिस्टर्ड है। दे आर प्रिपेयरिंग अकाउंट्स फ्रॉम 1 जनवरी से 31 दिसंबर। एज ए इन्फोसिस उनके दो जगह पे, एक इंडिया में है और यूएसए में। इंडिया में प्रॉफिट्स कब के लिए ढूंढ रहे हो, अप्रैल से मार्च, एंड वहां पे प्रॉफिट कब से ढूंढ रहे हो, जनवरी से दिसंबर। तो होता क्या है, एज ए इन्फोसिस पुट टुगेदर, एज ए इन्फोसिस, एज ए इन्फोसिस बोल रहा हूं, एज ए इन्फोसिस, तो वी मस्ट नो कि दोनों का प्रॉफिट कितना है, बट पीरियड अलग अलग है। अप्रैल से, एक इंडिया में अप्रैल से मार्च है और यूएस में जनवरी से दिसंबर है, तो एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये डिमांड है कि सब ने एक ही ईयर करो, अप्रैल से मार्च। उससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि राइट कंपैरिजन इजी हो जाएगा, कंपैरिजन, समझ में आ रहा है। सो इसलिए, और दिस विल हैपन, दिस एक्सपेक्टेड कि राइट अभी मोदी गवर्नमेंट के बीच में ये हो जाएगा इसी ईयर, मतलब इसी, यही गवर्नमेंट जो अभी चल रही है ना वही कर देगी। सो लेट मी शो यू इन्वेस्टर्स, यू विल गेट ऑल द डिटेल्स अंडर इन्वेस्टर्स टैब। कोई भी कंपनी की वेबसाइट ओपन करो, राइट, इन्वेस्टर्स टैब ढूंढो, वहां पे क्लिक करने के बाद इट विल टेक यू टू द फाइनेंशियल्स, समरीज ऑफ फाइनेंशियल्स, ठीक है। और ये हमारा लास्ट चैप्टर है जो मैंने अभी दिखाया आप लोगों को, दिस इज लास्ट चैप्टर, प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट, प्रिपरेशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारा लास्ट चैप्टर है। आई एम मेकिंग अवे, मैं दिखाते रहूंगा, समझे नहीं समझे, दैट इज अनदर पार्ट। एटलीस्ट 10 बार देखोगे तो एक बार तो थोड़ा तो समझेगा, एंड जब मैं एक्चुअल में सिखाऊंगा वो सब चीजें, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपके लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, देखो मैंने बोला सी ऑल द रिपोर्ट्स, ठीक है। मुझे अंदर नहीं जाना है, मुझे खाली ईयर्स दिखाने हैं आपको, देखो उनके क्या ईयर्स है, देखो, राइट, अवेलेबल 9-10 से 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20। अभी जो ऑनगोइंग ईयर है ये फाइनल कब होगा, 31 मार्च 21 को, कब खत्म होगा। सो वी आर इनटू 2021, वी आर इनटू 2021, ये कंप्लीटेड ईयर्स है, एंड एवरी ईयर स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल एंड एंडेड ऑन 31 मार्च। सो ये ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 9, लास्ट वाला जो दिख रहा है, एंडेड ऑन 31 मार्च 10। अगर मैं उसको क्लिक करूंगा, उस ईयर में कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितने असेट्स थे, कितने लायबिलिटी, ये पता चलेगा। फिर नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 10 से 31 मार्च 11 का होगा, उसके बाद का ईयर 1 अप्रैल 11 से 31 मार्च 12 का रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ऐसे आप करोगे, आर यू गेटिंग माय। सो ईयरली, जैसे आपका एकेडमिक रिजल्ट होता है ईयरली लगता है, वैसे राइट एज पर पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, द entities, the businesses are required to prepare final accounts, उसको क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट्स, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लास्ट चैप्टर है हमारा, राइट, टू असेस वो पास हुए या फेल हुए, मतलब वो प्रॉफिट में है या लॉस में, एंड व्हाट आर देयर असेट्स एंड व्हाट आर देयर लायबिलिटीज, ठीक है। सो ऑन दिस नोट आई विल इन टुडे सेशन, किसी के डाउट्स है तो आई विल टेक दोस डाउट्स, if anyone has doubt you can ask me, okay। चलो, you have lecture of maths I think at 10:15 रहता है, right? So accordingly, right, join the lecture, thank you।